بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہم قدم کے ساتھ ناصر محمود خان حاضر خدمت ہے۔ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے، آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھتے ہوں گے اور آپ کا گزشتہ ہفتہ اچھا گزرا ہوگا۔ ناظرین، یہ پروگرام ہم آپ کے لیے لے کے حاضر ہوتے ہیں جس میں ہم عمومی طور پہ اس خطے کی یعنی کہ ایشیا کی بات کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی ہم تبصرے اور تجزیے اس پروگرام میں پیش کرتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ تک ایک اور اینگل جو ہے وہ بھی پہنچایا جا سکے تاکہ آپ اس خبر کو، اس معاملے کو سمجھ سکیں۔ آج کے پروگرام میں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، محقق ہیں، ہمارے استادوں میں ہیں ڈاکٹر شفقت منیر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل، آپ کے دعا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کے اصل موضوع کی طرف چلیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے آج کا پروگرام کا جو موضوع ہے وہ اس سے بھی یہ میل کھاتی ہے۔ یہ چیز ہمارا برادر دوست پڑوسی ملک ہے چین۔ پاکستان اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کے 70 سال مکمل ہو رہے ہیں، تو ایک نظر ڈالتے ہیں کہ جو ہمارے چینی بہن بھائی ہیں وہ پاکستان کے بارے میں کیا جانتے ہیں، کتنا جانتے ہیں، کیا سوچتے ہیں۔ بیجنگ چلتے ہیں اور ایک رپورٹ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بسنے والے ہمارے پاکستان کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، کیا آرا رکھتے ہیں، اس کے بعد اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جی ناظرین، آئیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام مسرت ہے، میں چینی ہوں، میں اردو بولتی ہوں اور میں پاکستان سے بیار کرتی ہوں۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ دوسرے چینی لوگوں کی نظر میں پاکستان کیسا ہے اور پاکستان کے حوالے سے ان کے کیا تاثرات ہیں؟ ابھی میں بیجنگ کے مختلف علاقوں میں جاؤں گی اور وہاں کے لوگوں سے پوچھ لوں گی۔ آپ بھی میرے ساتھ آئیے۔什么？巴基斯坦，知道。我还去过巴基斯坦呢。都知道巴基斯坦。在中国边上，在中国的南边嘛。巴基斯坦的南边。不是中国邻国吗？在印度旁边。可这不亚洲吗？就在新疆西边，铁哥嘛，巴铁嘛。非常尊重咱们中国人。中国的好兄弟。足球踢得不太好。我就知道以前他那总统叫叶海牙汗，服装挺好看的，尤其是女孩子都挺羞涩的，漂亮，就是都老围着头巾。吃过西餐，没吃过巴餐。羊蹄儿有点辣，还挺烂的，果汁都很新鲜。巴基斯坦跟印度反正不一样啊。和中国不是关系最好的国家。这个战斗机的合作项目啊，促成了第一次的进行一个访华。汶川地震的时候嘛，也是支持过咱们，好像在帐篷嘛去签订。机会我们会去巴基斯坦旅游的。我没去过我去过新疆。有机会可以去看看。卡拉奇特别的热，我觉得要烤化了那样。拉合尔、伊斯兰堡、吉尔吉特，我觉得那个地方还挺好的。我以前去巴基斯坦留过学，巴基斯坦的拉合尔市非常有生活气息，公交车非常有色彩，对我来讲就像第二故乡一样。沃尔多语，मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रुक भी जाए तो पानी कम नहीं होता。欢迎你们来中国。बाजिन दोस्ती पहाड़ से ऊंची है और समुद्र से गहरी है। हम पाकिस्तानी हैं，我们也是巴基斯坦人。那边的人对中国人还都挺友好的，热情淳朴。他不是伊斯兰吗？巴基斯坦会把中国当 brother。巴基斯坦人民老跟我说就是中巴友谊万岁嘛，中巴友谊万岁。巴基斯坦真的吧？真的吧？中巴友谊万岁。巴中友谊比山高，比海深。中巴友谊万岁。中巴友谊万岁。世界和平吧。We are friends。巴金dosti zindabad。中巴友谊万岁。中巴友谊万岁。中巴友谊万岁。中巴友谊万岁。中巴友谊万岁。中巴友谊万岁。啊，中巴友谊万岁。中巴友谊万岁。中巴友谊万岁。中巴友谊万岁。中巴友谊万岁。中巴友谊万岁。祝福他们。中巴友谊万岁。جی، تو آپ نے یہ رپورٹ دیکھی ڈاکٹر صاحب، دیکھیے کہ وہی بات ہے کہ عوامی رابطے جو ہیں ان کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں جاننے لگتے ہیں، جنہیں نہیں پتہ ہوتا انہیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہیں۔ آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ 1951 میں دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات باقاعدہ طور پہ اس کا آغاز ہوا۔ پاکستان ان اولین ممالک میں ہے جس نے عوامی جمہوریہ چین کو جب وہ قیام میں آیا تو اس کو تسلیم کیا۔ 70 سال مکمل ہونے پہ ایک بہت ہی زبردستی تقریب کا اہتمام کیا گیا سائملٹینسلی پاکستان میں اور اسلام آباد میں اور بیجنگ میں، جہاں پہ کہ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ جو ہیں انہوں نے ورچولی ملاقات بھی کی اور اس حوالے سے اظہار خیال بھی کیا۔ شہد سے میٹھی
समुद्रों से गहरी, पहाड़ों से बुलंद, ज़रबुल मिसल बन चुकी है। आप कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल अगर इस 70 साल दोस्ती को देखें ना, तो खुद चीन के वज़ीर ख़ारजा ने भी इस मौके पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, मैं भी शायद रेजिस्ट नहीं कर पा रहा वही लफ्ज़ दोहराने में। उन्होंने कहा कि जो आहिनी दोस्ती अब फौलाद की सूरत इख्तियार कर गई है, यानी ताल्लुकात में इतनी गहराई है, और गहराई सिर्फ दो तरफा रिलेशन तक नहीं है, ये इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर में दोनों का नुक्ता नज़र एक दूसरे से मुशावरत के बाद असूलों की बुनियाद पे है। अगर आप ये देखते हैं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब आगाज़ किया ये वर्चुअल तकरीब जिसका आपने जिक्र किया, उसमें ख़िताब करते उन्होंने पूरी हिस्ट्री को भी ट्रेस किया कि किस तरह चेयरमैन माओ ज़ेडुंग और फिर उस वक्त वज़ीर आज़म चोन लाई, उन्होंने किस तरह इस दोस्ती की दाग बेल डाली, और पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी वो और उसके बाद आने वाली लीडरशिप, उन्होंने इस पे किस तरह रद्द अमल का इजहार किया और किस तरह ये दोस्ती आगे बढ़ती गई। यहाँ तक कि जब एक ज़माना आता है जब पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की जब हम बात करते हैं, अयूब खान के बाद याह्या खान और फिर भुट्टो साहब की जब गवर्नमेंट आती है, दो तरफा ताल्लुकात और फिर उसको इलाकाई सलामती के मामलात और ग्लोबल जो रिलेशंस हैं उसमें दोनों के दरमियान जो हमांगी है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। मसलन जब जैसे आपने भी कहा कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में जिन्होंने सबसे पहले चीन को तस्लीम किया, और फिर जब चीन अवामी जमहूरिया चीन बना और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पे जब चीन को तस्लीम करने की बात हुई और वन चाइना पॉलिसी की बात हुई, तो पाकिस्तान वाज अमंग फर्स्ट फ्यू कंट्री जिन्होंने कहा जी हम वन चाइना पॉलिसी के सपोर्टर हैं और अभी तक हम उसके सपोर्टर। उसका मतलब क्या वन चाइना पॉलिसी का? वन चाइना पॉलिसी का मतलब है कि जब हम सफारती ताल्लुकात कायम करते हैं, हम ये कहते हैं कि अवामी जमहूरिया चीन एक वो मुल्क है जिसके ज़ेरे यानी जो सरहदें हैं, जो भी उसका स्ट्रक्चर, उसके अंदर जितने इलाके हैं, चाहे वो पहले अलग तौर पे रहे हों, जैसे हांगकांग है, ताइवान है या मकाओ है, ये उनकी जो भी हैसियत है, जो भी उनकी हैसियत है, वो चीन का हिस्सा है। ठीक है, ये तस्लीम करना है। वन चाइना पॉलिसी का मतलब ये है कि हम इन चीज़ों को तस्लीम करते हैं और ये चीन का हिस्सा है। तो ये एक बड़ी बात थी उस वक्त सपोर्ट देना। फिर जब चीन आज़ाद हुआ और उसके बाद अवामी जमहूरिया चीन हुआ, दुनिया के साथ कनेक्टिविटी में पाकिस्तान ने बड़ा किरदार अदा किया। चीन को हर जगह प्रमोट किया, हर जगह चीन के साथ लेके गया, यहाँ तक कि जब इब्तदाई तौर पे पॉलिसी प्लानिंग हो रही थी उसमें भी पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जो बाकी इदारों की तरवीज हो रही थी वहाँ, उसमें पाकिस्तान ने अपने तजर्बात से चीन को उस ज़माने में सपोर्ट फराहम किया। और ये सपोर्ट फिर जब ज़ाहिर है चीन एक स्टेज पे चला गया, यही जो रेसिप्रोकेट होता गया पाकिस्तान के लिए चीन की दोस्ती। अब ये तो शुरू की बात है। अगर दरमियान में भी देखें या रिसेंट हिस्ट्री में भी देखें, दोनों मुल्कों का ताउन एक दूसरे को सपोर्ट करने का, ये देखें कि 2008 में चीन में अगर ज़लज़ला आता है तो बकौल चीनी वज़ीर ख़ारजा के जो उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि हमें याद है कि जब हमारे शहर चुआन में ज़लज़ला आया 2008 में, तो पाकिस्तान के स्टॉक में जितने खैमे थे उन्होंने हमें भिजवा दिए। नहीं, और अभी जो हमने रिपोर्ट अपने नाज़रीन को दिखाई उसमें भी देखें वो एक चीनी साहब थे, वो इसका खास तौर पे उन्होंने जो है उन्होंने जिक्र फिर 2010 का सैलाब हो, उसमें चीन ने हमारी मदद की। तो ये वो हैं जब मुश्किलात, चाहे वो कुदरती आफात हों या सियासी तौर पे इम्पोज कर दी जाए, वहाँ चीन और पाकिस्तान साथ खड़े हैं। स्ट्रेटेजिक इशूज़ को देख लें आप, कश्मीर के इशू पे, कश्मीर के मामले पे आप देखें कि कश्मीर चीन का स्टैंड हमारे साथ शुरू से है, अब है, असूली बुनियाद में। और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ कश्मीर में हक़ खुदरादियत की हिमायत करता है, चीन दुनिया भर की हक़ खुदरादी की तरीक़े उनको सपोर्ट करता है, पाकिस्तान दुनिया भर में हक़ खुदरादी की तरीक़ों को सपोर्ट करता है। तो ये भी वो एक असूल है जो इलाकाई और बैनुल अक़वामी सतह पर दोनों मुल्कों को साथ लेके चलने की बात करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम मज़ीद आगे बढ़ें, ब्रेक पे जाने से पहले मैं मुख्तसरन, चूँकि हम ये देखते हैं कि गुज़श्ता 30-35 सालों में चीन ने वो तरक्की की जो उसकी जो रफ्तार थी वो बहुत तेज़ हुई और वो उस मकाम पे पहुंचा कि आज हम देखते हैं कि दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत बन चुका हुआ है। लेकिन जो एक मुश्किल पीरियड था चीन का, जिसका भी आप भी जिक्र कर रहे थे, उसमें पाकिस्तान ने बहरहाल चीन को जिस हद तक जो भी हिमायत और जो मदद हो सकती थी वो दी, चाहे वो दुनिया के दीगर ममालिक के साथ
जोड़ने की बात थी, सफारती ताल्लुकात की फिर आप बात इसमें थी, देखें उसमें पाकिस्तान ने बड़ा किरदार अदा किया। गैर वाबस्ता ममालिक की जो तहरीक थी उसमें पाकिस्तान बहुत मुतहर्रिक था, फिर चीन को उसके था, फिर अब WTO में लाने के लिए जब WTO में चीन आया है उस वक्त भी पाकिस्तान की सपोर्ट थी, और G77 में भी पाकिस्तान साथ था, और बाकी जो जितने रीजनल ग्रुपिंग्स हैं पाकिस्तान ने चीन को हमेशा ये सपोर्ट फराहम की, और इसी तरह रेसिप्रोकल बुनियाद कह लें या शायद उससे भी आगे की बात है, चीन ने भी हर जगह पे पाकिस्तान को भरपूर सपोर्ट किया, चाहे वो सफारती महाज हो, इक़्तिसादी महाज हो, या कोई और तब्दीली के हवाले से दुनिया में जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ रही हैं उसके हवाले से। फिर आसियान में पाकिस्तान की जो एक यानी वहाँ पे खड़े होना मुबसर के तौर पे, वहाँ पे भी ज़ाहिर है चीन भी वहाँ पे एक प्लेयर के तौर पे मौजूद है, पाकिस्तान मौजूद। इस तरह सार्क में चीन का मुबसर होना, पाकिस्तान उसको सपोर्ट करता है। बैनुल-अक़वामी और इलाकाई जितने फोरम हैं उन पे भी ताउन मौजूद है, और फिर दोनों मुल्कों के दरमियान जो दोस्ती है उसमें तरक्की के समरात लोगों तक पहुँचाने का की जो सोच है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें अगर रिसेंटली देखा जाए सदर शी जिनपिंग के हवाले से वज़ीर ख़ारजा जो पाकिस्तान के हैं उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि अगरचे साबका क़यादत जो है चीन की वो पाकिस्तान को बड़ा सपोर्ट करती है, लेकिन इस क़यादत का उन्होंने ख़ास तौर पे जिक्र किया कि सदर शी जिनपिंग की क़यादत में जो चीनी लीडरशिप है या जो चीनी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के इदारे हैं उन्होंने ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान को सपोर्ट किया बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक को भी सपोर्ट करें, और ख़ुद उन्होंने भी अपने मुल्क की तरक्की की जो मंजिलें वो इस सतह पे ले गए हैं कि आपने जैसे कहा दूसरी बड़ी इकोनॉमी के तौर पे बिल्कुल सामने बिल्कुल ठीक। ब्रेक पे जाना डॉक्टर साहब, उसके बाद जब हम वापस आते हैं तो ये तरक्की और कनेक्टिविटी जो है इससे सफारती ताल्लुकात किस हद तक इसको आगे लेके चलें इस पर बात करते हैं। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, अब आज के प्रोग्राम में बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो सिफारती ताल्लुकात हैं 7 दिहाइयाँ उसकी मुकम्मल हो गई हैं। जी हाँ, 70 साल मुकम्मल हुए हैं। किन किन मदारिज से यहाँ तक ये ताल्लुकात, ये दोस्ती, ये रिश्ता पहुँचा है, इस बारे में हम राय जान रहे हैं और कुछ तारीख़ के हवाले भी हमें सुनने को मिल रहे हैं डॉक्टर शफ़क़त मुनीर साहब से। डॉक्टर साहब, जिक्र आप कर रहे थे कि फिर चीन ने भी अपने एक मुखलिस दोस्त होने का सबूत दिया और पाकिस्तान के लिए हर तरह से उसने अपनी हिमायत और मदद फराहम की, और इसी का अयादा अब भी हमें देखने को मिलता है। पाकिस्तान के जो मुश्किल इक़्तिसादी और मुआशी सूरत हाल रही है उसमें भी चीन ने अपना एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है, कुछ उस हवाले से अभी आप देखें रिसेंटली आप देखें कि जब पाकिस्तान को एक बड़ी सपोर्ट चाहिए थी, चीन ने फौरी तौर पे वो सपोर्ट फराहम की डॉलर्स की सूरत में। जब अभी हमारी इकॉनमी में फौरी तौर पे ज़रूरत थी पैसे की, तो बजाय इसके कि किसी IMF भी उस वक्त ज़ाहिर है एक और सिचुएशन थी, उस वक्त तक हम नहीं पहुंचे थे, तो चीन ने वो फौरी तौर पे सपोर्ट फराहम की। ये तो वो है जो कैश की सूरत में है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे मौके हैं जिसमें चीन की तरफ से हमें जो कैश सपोर्ट है वो भी मौजूद रहती है। लेकिन दूसरे आप इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप देखें सी पैक के हवाले से पाकिस्तान में चाहे वो किसी भी पार्टी की लीडरशिप हो, कोई क़यादत हो, तमाम क़यादतें इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि सी पैक पाकिस्तान की तरक्की का मंसूबा है, और इसका वज़ीर ख़ारजा ने भी जिक्र किया, और इससे पहले वाली जितनी दोनों हुकूमतें गुजरी वो सब सी पैक के हवाले से अच्छी उम्मीदों का इजहार करते हैं। अब आप थोड़ा सा देखें, पहले तो सिर्फ बात होती थी सी पैक, कागज़, माहदे, अब तो लिटरल बात ये होगी कि ऑन ग्राउंड है। अब 70% जो माहदे जिन पे जो अमल दरामद की तरफ बात गई और मिलजुल के मुश्तरका तौर पे माहदे शुरू हुए, उसमें 40% जो इस वक्त माहदे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अमली सूरत में या तामीर हो चुके हैं या जिनका काम अभी फाइनल मरहल में। ठीक है, अब 25 अरब डॉलर से ज़्यादा बाकायदा तौर पे वहाँ स्पेंडिंग हो चुकी है, 75,000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला है उसमें, और एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और इससे ज़्यादा जो कनेक्टिविटी बिल्ड हो रही है। अब आप ये देखें कि मैं भी साउथ पंजाब से होके आ रहा हूँ, वहाँ पे लोग बाकायदा तौर पे सी पैक, मैंने कहा भाई आप लोगों को कहते हैं जी सी पैक अब यहाँ से गुजर रहा है, अब यहाँ के जो तरक्की का जो अमल है वो तेज़ होगा, क्योंकि यहाँ उसके गिर्द गिर्द जितने इलाके हैं वहाँ डेवलपमेंट होगी। ये तो बहुत ऐसे इलाके थे जो गैर आबाद इलाके थे, अब वहाँ से सी पैक गुजर रहा है, और उसके साथ साथ हमारी तो
ज़मीनों की वैल्यू होगी, हमारे तो कारोबार बेहतर होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है उसके साथ कनेक्टिविटी, यानी खुशहाली आ रही है। खुशहाली ज़ाहिर है, जब एक रोड निकलेगा, और सी पैक सिर्फ एक ये नहीं एक रोड निकल रहा है, सी पैक ग्वादर पोर्ट है सबसे बड़ी एक वहाँ पे जो सूरत हाल है, फिर ग्वादर में जो डेवलपमेंट हो रही है, फिर इस रोड के साथ साथ जो इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे उसमें जो इंडस्ट्री है, फिर पावर सेक्टर में बहुत सारी जो डेवलपमेंट हुई अभी है। पाकिस्तान को जो तवानाई का जो बहरान था उसको काबू में लाने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया इस मंसूबे ने। और अब ये और फिर दूसरे एक प्रोपेगेंडा किया जाता रहा सी पैक के हवाले से कि शायद ये कोई बहुत बड़ा कर्जा, ये बर्डन है, ये इन्वेस्टमेंट है। जैसे कोई कंपनी आप पैसे लगाते हैं, वो काम होता है, उसके बाद उस पर प्रॉफिट है और आप प्रॉफिट दे रहे हैं। आम कारोबारी लोग हमारे बैंकों से, अपने बैंकों से भी लेते हैं, और ये चीनी कंपनी अगर पाकिस्तानी कंपनियों के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो ये तेज़ी से एक आगे बढ़ता हुआ मायदा है। और BRI जो चीन का एक ओवरऑल कंसेप्ट है, ठीक है ना, वो BRI के कंसेप्ट के साथ अगर इसको जोड़ें तो ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अब अफगानिस्तान से अगर लिंक बनता है, सेंट्रल एशिया से लिंक बनता है, इधर ईरान है, और बाकी सारी कनेक्टिविटी इसको अगर देखें तो कनेक्टिविटी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि तरक्की के अमल में उस वक्त तक आप आगे नहीं बढ़ सकते जब तक उसको आप लिंक नहीं करते, रोड और मार्केट को लिंक नहीं करते। तो रोड और मार्केट को लिंक करने का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के तहत सी पैक और ओवरऑल BRI, जिसमें कोई 150 के करीब ममालिक मुख्तलिफ तरीके से अफ्रीका के हों, एशिया के हों, यूरोप के, वो उससे कनेक्टेड होंगे तो दुनिया आगे की तरफ जाएगी। तो पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ चीन ने अपने इस सबसे बड़े मंसूबे का आगाज पाकिस्तान से किया, और ये इसकी मिसाल है कि दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती किस सतह पे पायदार है। तो ये इसको देखें। फिर उसके साथ साथ आप ये देखें मेडिकल सप्लाईज का, आपने कोविड में देखा कि पाकिस्तान को शुरू में जैसे वुहान में सूरत हाल हुई, पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से ताउन किया चीन के साथ। खुद चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमें पहली सपोर्ट जो है पाकिस्तान से मिली। उसके बाद चीन के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हुआ चीनी वायरस या वुहान वायरस के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान उस प्रोपेगेंडे का न सिर्फ एक हिस्सा नहीं बना, बल्कि पाकिस्तान ने चीन को सपोर्ट फराहम की। ये चीनी क़यादत भी इस चीज़ को तस्लीम कर रही है। तो उसके बाद ये कि जब सप्लाईज़ की इशूज़ हुआ, मार्केट सप्लाई चेन PPEs के हवाले से, या आप देखें कि जो अदरवाइज सप्लाईज़ हैं, हॉस्पिटल सप्लाईज़ हैं, बाकी चीज़ें हैं, बेड्स हैं, ये सारी सप्लाईज़, फिर वेंटिलेटर्स हैं, ग्लव्स हैं, बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो चीन की तरफ से बड़े पैमाने पे बल्क में आई। और अब जब वैक्सीन आई तो आपने देखा कि सबसे पहले पाकिस्तान को सबसे पहले वैक्सीन मिली है, ठीक है। और ये वो ताउन की वो जहते हैं जो जिसको हम जितना भी खोलते जाएं इसकी परतें बहुत ज़्यादा। ये तो बड़े हार्ड एंड कोर हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप सिर्फ खेल और सकाफत जो सॉफ्ट एरियाज हैं उधर आ जाएं, वहाँ पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन की नई राहें खुली हैं, यानी जॉइंट वेंचर्स हो रही हैं। सकाफत को प्रमोट करने के लिए एक दूसरे के शहरों को जुड़वा शहर करार दिया गया, प्रोविंसेस को जुड़वा प्रोविंसेस करार दिया गया, और जो तरक्की के जो मॉडल्स हैं वो लेके आए शुरू। और फिर आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये 70 साल के हवाले से, और इससे पहले चीन का जो नया साल है, जहाँ चीनी लीडरशिप को जब मुबारकबाद का पैगाम दिया, उसमें एक चीज़ बड़ी अहम थी जिसको देखने की ज़रूरत है, और जिस पर प्राइम मिनिस्टर खुद भी कन्विंस है और चाहते हैं कि चीन का मॉडल हम यहाँ अप्लाई करें, वो गुर्बत का खात्मा। सही, आप 80 करोड़ लोगों को पिछले 30 साल में गुर्बत से निकाल रहे हैं। इसकी मिसाल नहीं मिलती। वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मॉडल है, और वज़ीर आज़म ने कहा कि हम भी चीन के इस मॉडल के तहत अपने लोगों को गुर्बत से निकालना चाहते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो दोनों मुल्कों के दरमियान आपस में एक दूसरे को जोड़ रही हैं। इस पे बात करते हैं, और ये भी जानना पड़ा इस पे कि जो सी पैक का जो सेकंड फेज़ है, इसमें ज़राअत पे ख़ास फोकस रहा है। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, उसके बाद मिलते हैं आपसे दोबारा और गुफ्तगू को यहीं से शुरू करते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हम कर रहे थे, मैं चाहूँगा मुख्तसरन आप अपनी बात को कंप्लीट कर लें कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन हमें नज़र आ रहा है। अब जो ज़राअत है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, क्या मानी रखता है वो ताउन और कहाँ पे है अब दोनों मुल्कों के दरमियान? देखिए, बुनियादी तौर पे इसमें कोई शक नहीं कि दोनों मुल्कों में ज़राअत बड़ी एडवांस, पाकिस्तान में कोई ज़राअत बहुत पीछे नहीं है, लेकिन ये कि इसको नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। अब आप ये देखें, जिस बेल्ट में कॉटन होती थी, आम होता था,
वहाँ पे अब मौसमियात की तब्दीली की वजह से ज़रा और हिद्दत पैदा हो गई है। जिन मुल्कों में, जिन इलाकों में पाकिस्तान के हम समझते थे कि शायद इस किस्म की फसलें या ये दरख्त नहीं लग सकते, वो लगना शुरू हो गई। क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर यील्ड ये जो मुतासर हो रहे हैं, और फिर पानी की जो सप्लाई है वो कम होती जा रही है, वाटर टेबल डाउन हो रही है। इसमें नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, और चीन ने इस सिलसिले में बहुत तरक्की कर लिया है। अभी आप देखें कि चीन ने अनाज के मामले में बड़ी हद तक इंटरनेशनल उसको आउट मैच कर दिया है। अब वो मार्केट में सप्लाई देने की पोजीशन में, और अपनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है उनको भी फीड कर रहे हैं। तो उस तजर्बे से फ़ायदा उठाने के लिए, और चीन की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान चाहे तो हम ये इस पे काम कर सकते हैं, और इस सिलसिले में काम हो भी रहा है। हुकूमत पाकिस्तान जो है वो बड़ी सीरियसली इस पर कंसिडर भी कर रही है, राब्ते में है। और मुझे अभी इत्तफाक हुआ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के में कुछ हमारे दोस्त हैं पंजाब की जो ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ये ट्रायल शुरू हो गए, और यानी फसलों की वैरायटीज़ जो हैं उनको भी डेवलप किया जा रहा है, ताकि वो क्लाइमेट से हिट होने की बजाय फसलों को हम ज़्यादा बेहतर तौर पर ला सकें, क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप्स ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मौसमियाती असरात से वो बचे रहें, और खुराक जो है उस मामले में हम खुद कफील हो जाएं, और खुराक की कमी का मसला ना रहे। वो ज़ाहिर है कि मैकेनाइज एग्रीकल्चर ख़ासतौर पे जो चाइना की टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके साथ मिलकर बहुत अच्छे तरीके से इसको आगे लेके जा सकते। बिल्कुल ठीक, यानी कि ये ताउन जो है वो इस शोबे में भी रोज़ अफ़ज़ों आगे बढ़ता हुआ, फ़रोग़ पाता हुआ हमें नज़र आ रहा है। डॉक्टर साहब कुछ चलते हैं थोड़ा सा बैनुल-अक़वामी मंजरनामे की तरफ चलते हैं। वहाँ पे भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए, मामलात हुए कि जहाँ पे कि ये दोनों बरादर पड़ोसी मुल्क जो है हमें एक दूसरे के साथ खड़े नज़र आए हैं। कुछ थोड़ा सा उस पर ज़रा रोशनी अगर आप डालें, बताएं कि वो कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं कि इंटरनेशनली ये दोनों मुल्क। अभी देखें ना, अगर आप दोनों मुल्कों के नज़रियात और सियासत पे जाएँ, वो तो ज़ाहिर है दो मुख्तलिफ निज़ाम है। हाँ, नज़रिया। लेकिन अगर आप असूलों पे जाएँ कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के असूल, उन पे दोनों का इत्तफाक है। मसलन दोनों मुल्क चाहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा एक मुतहर्रिक इदारे के तौर पे काम करे, जो दुनिया के जिस मुल्कों को जहाँ जहाँ किसी भी वजह से, चाहे धौंस धांधली या किसी प्रेशर की वजह से अगर किसी मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिश होती है, तो वो जो ग्लोबल गवर्नेंस है वो बहाल हो, वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा अपना किरदार अदा करे, और जो बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस हैं, जो बैनुल-अक़वामी मुआहदे हैं, उनकी पासदारी की जाए। चाहे वो ट्रेड में WTO का माहिदा हो, या आप क्लाइमेट चेंज की बात करें, अमेरिका उससे निकल गया, चीन ने कहा जी हम तैयार हैं उसके लिए, पाकिस्तान उसके लिए तैयार है। अब पाकिस्तान पहले दुनिया के 10 ममालिक में होता, अब जो नई फिगर्स आई हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान हाईली वल्नरेबल कंट्रीज़ में चला गया, जो शायद पहले 5 मुल्कों में आते हैं। अब आप ये देखिए कि क्लाइमेट चेंज की जो क्लाइमेट साइंस है, जो क्लाइमेट पॉलिसी है, उसको कोरिलेट करके देखें तो इंटरनेशनली चीन और पाकिस्तान कहते हैं भाई जो जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो उसमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, और क्लाइमेट अडेप्टेशन और मिटिगेशन यानी माहौलिया जो मौसमियात की तब्दीली है, इससे पड़ने वाले असरात को रोकने के इक़दाम भी किए जाएं, और उस सूरत हाल में खुद को एडजस्ट करने के इक़दाम यानी अडेप्टेशन वो भी किए जाए। वहाँ चीन और पाकिस्तान साथ खड़े हैं। फिर जो मल्टीलैटरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, दोनों मुल्क चाहते हैं कि कोई एक मुल्क दुनिया के फैसले ना करे। हाँ, कोई एक मुल्क यूनिलैटरल अप्रोच से आगे ना आए, अपने नजरियात की वजह से दूसरों पे धौंस धांधली ना करे। दोनों मुल्क चाहते हैं कि तमाम ममालिक इंटरनेशनल गवर्नेंस का हिस्सा हों, और जहाँ हक़ खुद इरादियत की तहरीक हो, बात हो, वहाँ उनके हकूक़ की बात की जाए। जहाँ मल्टीलैटरली ट्रेड की बात हो, ट्रेड के असूल तमाम सबके लिए हों, वहाँ पिक एंड चूज़ ना हो। अगर मार्केट ओपन है तो सबके लिए ओपन है, वहाँ आप ये पाबंदी ना लगाएं कि फ़लाँ मुल्क की कंपनी नहीं आएगी, फ़लाँ मुल्क की कंपनी या टेक्नोलॉजी आगे नहीं आएगी, और फ़लाँ मुल्क की या एक खित्ते की जाएगी। तो ये जो मल्टीलैटरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ग्लोबल गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है, उसमें दोनों मुल्क साथ खड़े हैं। फिर ये कि तरक्की पजीर मुल्कों को के साथ सपोर्ट करने का जो अमल है, उसमें दोनों मुल्क साथ खड़े हैं। फिर जो बैरूनी जाहिरियत जहाँ भी होती है, उसकी मजम्मत करने और उनके बारे में एक तरह का मौक़िफ़ रखने में भी चीन और पाकिस्तान साथ हैं। चाहे ये फ़िलिस्तीनियों पे हो, कश्मीर पे तो बिल्कुल दोनों मुल्क बहुत वाज़े तौर पे हैं, या कि दुनिया के किसी और खित्ते में हो। आप देखें ईरान के ख़िलाफ़ अगर कोई इस किस्म का यूनिलैटरल एक्शन होता है, चीन और पाकिस्तान उस यूनिलैटरल एक्शन को सपोर्ट नहीं करते।
ऐसे खत्ते में अगर कोई डिस्टेबलाइजेशन की सिचुएशन क्रिएट करना चाहता है तो दोनों मुल्कों का मौक़िफ़ है कि इस खत्ते में, एशिया में अमन होना चाहिए, और अमन और तरक्की को जोड़ के देखने की जो ऐनक है या जो सोच है वो दोनों मुल्कों में यकसां पाई जाती है। डॉक्टर साहब, हम अपने हर प्रोग्राम में अपने नाजरीन के लिए एक सकाफती नमूना जो है वो भी पेश करते हैं, कुछ तारीख़ के औराक भी हम पलटते हैं। आज भी बहुत ही ज़बरदस्त हम रिपोर्ट एक लेके आए हैं, और वो जब आप भी देखेंगे, हमारे नाजरीन भी देखेंगे, उन्हें पता चलेगा कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो चीन है वो उसकी तारीख़ कितनी कदीम और कितनी रिच उसका कल्चर जो है। एक रिपोर्ट आइए देखते हैं और तारीख़ के हवाले से कुछ जानने बैक, और उम्मीद है कि इसमें आपको जानने और सीखने को ज़रूर कुछ ना कुछ नया मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपकी तशरीफ़ अफ्रीका। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।